thought, their the background that they have. There's so much that you can explain. Otherwise, we just can't explain. You're getting my point? So IELTS, when they give you a question, they'll ask you your point. You have to refer to your point, and बात वहां खत्म नहीं होती है. Students have this habit. Okay, ma'am, I've got this question. First point is this, moreover this, in addition to this. Sorry, no. You just can't write first point, second point, moreover, addition, and I'll get 7 banks. You will never ever get it. So what you have to do is give 1 point and give 2 points. Give 2 points, but explain it very thoroughly. That is where the catch is. You have to expand your ideas. You have to express yourself. And when you express yourself, you'll be using the technical vocabulary. There comes the catch, where you can score high. And how you present it, that is what that matters. जब आप अपना पैराग्राफ लिखते हैं, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Most of the students would say, I've been reading on the internet, ma'am, they're saying complex sentence. Please teach me complex sentence. Sorry, relax, take it easy. We don't have to run under this complex sentence and everything. I'll handle that. Leave it on me. First, learn to write simple. First, explain yourself with simplicity, with clarity, with example. And then we will think about complex sentences and complexities. ना पहले अगर हम complex के बारे पीछे भागेंगे, मैम मुझे complex sentence करा दो, मुझे ये करा दो, आप जब simply अपने आप को express नहीं कर पाओगे तो आप complex sentence में कैसे work करोगे? So it's a phase thing. Questions जो आएंगे, कभी भी आपको question नहीं आएगा कि how a robot is basically operational, technical नहीं आएगा. They'll ask about the advantages and disadvantages of robots maybe. Dharamveer, are you doing something? I can't hear you. I'm writing notes. Relax, don't write notes. I'll give you enough notes. Now you listen to me. Now it's my time. So I'm going to talk. You be a good listener. I'll give you notes and everything. Don't worry about it. Hi Manveer, how are you? Ma'am, I'm fine. Good. So first thing is, what I've taught you is, whenever you're writing an answer, in essay writing, first is the global touch. What's happening in the world? Second, what is the question? That means, what is the meaning of the question? Question में से word नहीं pick करना, ये word क्या कह रहा है, ये word क्या कह रहा है. No, ये पूरा sentence का meaning क्या कह रहा है. You need to understand it very clearly. Then you need to understand the type of the question, whether it is a debatable, whether it's agree, disagree, whether it's reasons and solution. And then you start writing it down. So when you write down your introduction and when you explain yourself, give 2 reasons. That is it. 2 reasons and explain that reason. You are giving a point, you're explaining the point, you're giving an example. The paragraph becomes like this and it is all sorted. In simple language, you all are basics for me right now. So don't worry about anything 7.5. Right now we're aiming for 6.57. So we write simple and clear. And whatever the topic is, use technical vocabulary in it. Once you use technical vocabulary in it, thumbs up. And I'm again not asking for very hi-fi words. Sorry, no hi-fi words. Simple language. Slight technical words, you're all good to go. And you have to have a right presentation with your introduction, your body paragraph 1, body paragraph 2, depending on what the type is, and then a beautiful conclusion. And a practical example if the examiner is asking. If there is a question where there's a line which says that, use your own ideas and your personal examples. So you have to incorporate personal examples. Like my niece, my nephew, my maternal uncle. Personalize. You have to make your sentences. No surveys. You can't use surveys in it. So it's a big no for surveys. So you have to make simple sentences. I'll even teach you how to do that also. Clear till here? Anybody, any doubts? All sorted? Okay. So now let's do one essay writing question. Just give me a second. I'll just figure out the question for you.
to read also. You to give me a surprise. उधर एक्टिविटी कर I have to go like this every time. Is that okay? हाँ Now write on one question, please. Write on one question. In many countries, the tradition of families having meals together, the tradition of having meals together is disappearing. What are the reasons? Question mark. What will be its effect? On family and society? Question mark. I'll repeat the question for all of you. In many countries, the tradition of families having meal together is disappearing. What are the reasons? Question mark. What will be its effect on family and society? Question mark. Now, any idea what type of question is this? Question हमसे पूछ क्या रहा है? reason and solution Reason and solution, okay? Do not hesitate, just go ahead. धर्मवीर आपको क्या लगता है? Same thing. Reasons and solution, okay? Manveer? Reasons and its effects. Okay. So I have two students saying that it's reason and solution and Manveer is saying that it's reasons and effect. मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कहा था कि सेंटेंस पर समझना है, वर्ड के साथ नहीं जाना है. ये क्वेश्चन जो टाइप है पहले बता दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. It is a question which is asking reasons and it is asking about effect, asar. It is not asking solution. Reasons does not mean solution. एग्जाम में आपको लगेगा यार क्वेश्चन रीजन है तो साथ में सोल्यूशन नहीं आएगा. मैम मैंने पेपर दिया, मेरे मार्क्स नहीं आए. मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए? आपके मार्क्स क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने तो अलग क्वेश्चन को समझा ही नहीं. आपने एज्यूम किया कि ये सोल्यूशन है, जबकि मनवीर ने बहुत स्मार्टली कहा कि मैम यहाँ पे तो इम्पैक्ट की बात हो रही है, इफेक्ट की बात हो रही है. धर्मवीर एंड विकास समझ में आया? yes ma'am That's a blunder. Please allow me to say this. That's a blunder. मनवीर ने ब्लंडर नहीं किया. उसने सिंपल लिखा बट उसके 7 बैंड आ जाएंगे. आपने 7+ बैंड का लेवल लिखा, अच्छी वो कैप, एवरीथिंग, बट यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड स्कोर्स. नॉट मोर देन 6, नॉट मोर देन 5.5, बिकॉज आपने एक क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया. टास्क अचीवमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो वो 5.5 और 6 के बीच में आप अटक जाओगे. दिस इज अ वेक अप कॉल. अभी मैं आगे बात ही नहीं कर रही, तो पहली चीज हमें सिनेरियो समझना है. एंड इस क्वेश्चन में रीजंस के साथ बहुत ध्यान से आपने देखना है. जो आपने एक चीज मिस कर दी है, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन फैमिली एंड सोसाइटी. विल बी फ्यूचर में, अभी क्या हो रहा है वो नहीं बताना. आने वाले टाइम में क्या होगा वो अपने वो बताना है. और उसके बाद आपने ये भी बताना है फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. दोनों के बारे आपको बताना है. आपने फैमिली के बारे बता दिया और सोसाइटी के बारे नहीं बताया, टास्क अचीवमेंट के मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे आपको. सिंपल सा सेंटेंस है, समझना है. See, I am going to train you like this, then on the final day you don't have to worry about your structure, vocabulary, no ideas, no, you don't have to. I just want from my student that at least you should be in a position कि आपका क्वेश्चन आ गया,
आप ध्यान से आप 5 मिनट लें, आप 6 मिनट लें, क्वेश्चन को समझें, अपने नोट्स बनाएं, आइडियाज बनाएं, उसके बाद आप लिखना शुरू करें। 35 मिनट्स में हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, जितनी इंटेंसिव ट्रेनिंग हम करेंगे। अगर आपने शुरुआत गलत कर दी, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, बिकॉज आप 20 मिनट्स के बाद आपको रियलाइज होगा, ओ शिट, मैंने तो क्वेश्चन ये बोला था, मैंने तो लिखा ये। ना आप पीछे जा सकोगे, ना आप आगे जा सकोगे, पैनिक बटन हिट हो गया, मतलब आपके हाथ से वो टाइम निकल गया। आप डेंजर समझ रहे हैं क्या चल रहा है? आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द फाइनल डे, इवन व्हेन आई एम टीचिंग राइट हियर सिटिंग नाउ, एंड यू जस्ट बिगिनर्स विथ मी. My brain is working that on the final day when my student is sitting on that hot seat, he should feel like, oh, this is such a chill paper. 7.5 तक खड़े खड़े आ जाएंगे. और 90% बच्चा यही गलती करता है क्योंकि वो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़. धर्मवीर, आपको क्यों लगा कि ये रीजन सोल्यूशन है? मैं पता सीखा पर मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ, टाइप कर रहा सीखे वो. तो ये चीज आपका, अभी आप कह रहे हैं मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में पता है क्या होगा, आप इतना टायर्ड हो जाओगे क्योंकि आपका बैक टू बैक एग्जाम चल रहा है. एग्जाम का थोड़ा सा फोबिया भी होता है, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बैठना होता है, तो यू विल बी ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड. सो उस मेंटल एग्जॉस्टिंग सिचुएशन में भी यू शुड बी लाइक, ओके, आई नो इट, आई नो द क्वेश्चन, आई स्कैन माई क्वेश्चन. वो चीज हमने करनी है, ठीक है? बिकॉज आपने क्यों बोला कि ये रीजन सोल्यूशन है? When last line, like, it's effect. So when we are telling effect, so we have to give solution or no? No, effect का मतलब होता है असर. Yeah. असर. सोल्यूशन होता है कि सॉल्व कैसे करना. So सिर्फ effects बताने हैं, solution नहीं देंगे. सिंपल सी चीज बताती हूँ आपको, आप सबको समझ आ जाएगी मेरी लैंग्वेज, और बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी. अगर आप ड्रिंक्स लेते हो, ठीक है, कभी कभी लेते हो, अच्छा है, रीजन क्या है? आज मेरा बर्थडे है, डन. आज मेरी एनिवर्सरी है, डन. आज मुझे प्रमोशन मिला, डन. एक हैप्पीनेस वाला हो गया, ठीक है, एक हो गया हैप्पीनेस वाला रीजन दे दिया. एक और रीजन देना है, तो हम कहते हैं दूसरा रीजन कि भाई आपने आज क्यों ड्रिंक ली? मैंने ना आज अपने बारे सोचना है, लाइफ में क्या करना है, यू नो, माइंड एक्टिव हो जाए, या मेरा माइंड बहुत स्ट्रेस्ड है, तो इसलिए मैं अपने आप को रिलैक्स, मेंटल हेल्थ के लिए. डन. आपने ले लिया. आप पहले थोड़ा लेते हो, उसके बाद ज्यादा लेना शुरू करते हो, थिंग्स गेट बैक टू वर्स. गॉट इट? इसका असर क्या पड़ेगा? जब आप कोई चीज 30 से 90 करते हो और उसको 90 से डबल करते हो, ज्यादा लेना शुरू करते हो, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, XYZ आपको पता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा. यही चीज है. इफेक्ट का मतलब ये है. सोल्यूशन क्या है? अगर हम 60 लेते हैं, 90 ml लेते हैं, सोल्यूशन क्या है? कम कर दें, कभी कभी ले लें, थोड़ा ले लें, बंद कर दें, वो सोल्यूशन है. अब समझ आया? सोल्यूशन का मतलब और इफेक्ट का मतलब अलग होता है. अब इसमें ये चीज का ध्यान रखना है आपने बहुत क्लियरली कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है. सो इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे? हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर एक ही पैराग्राफ में हमें रीजंस देने पड़ेंगे 2. जनरली हम क्या करते हैं, हम 2 पैराग्राफ्स बनाते हैं रीजंस के, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ. बट यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो 3rd पैराग्राफ है उसको हमें क्लियरली बताना है कि उसका इफेक्ट फैमिली पे कैसे होगा, और एक पैराग्राफ में बताना पड़ेगा सोसाइटी में कैसा होगा. क्योंकि अगर फैमिली और सोसाइटी को इकट्ठे लिख दोगे ना, तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि मैंने लिखना कहाँ पे और लिखना कैसे है, तो वो क्लम्जी हो जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि स्टार्टिंग वाला जो है आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप लिखोगे एक ही पैराग्राफ में 2 रीजंस, फिर आप फैमिली का एक रीजन लिखिए, फिर आप सोसाइटी का एक रीजन लिखिए, उसके साथ एग्जाम्पल देके तब आप कंक्लूजन दीजिए. अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि मैम मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, मैं 2 पैराग्राफ रीजंस के लिखूंगा, थम्स अप, वो भी बिल्कुल सही है. फिर एक पैराग्राफ में बहुत ब्यूटीफुली वो बताता है कि भाई फैमिली में ये असर पड़ेगा, सोसाइटी में ये असर पड़ेगा, कंक्लूजन लिखेगा, वो भी थम्स अप है, गलत नहीं है. इट इज योर एबिलिटी, इट इज योर कंफर्ट, आपको कौन सा तरीका चाहिए. गॉट इट? समझ आया? Yes, ma'am.
अब इसके बाद आप ये लिखोगे भी, आप गलतियां भी करोगे, इट्स एब्सोल्युटली ओके, मेक मिस्टेक्स in your initial classes. The more the mistakes, the better it is, the mind will be more clear, right? अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके नोट्स बताती हूँ, आप जरा कुछ सेंटेंसेस वगैरह लिखें, राइट इट डाउन प्लीज. In many nations, हम countries के बदले nations लिख रहे हैं. In many nations, comma, the cherished traditional families gathering around the dinner table for shared meals is gradually fading away. आप इसको बहुत सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो. In many nations, the traditions of families having meals together is diminishing, is fading, is gradually fading. बिल्कुल सही है. Please be very careful. Rephrase करने के चक्कर में आप गलत सिनोनिम नहीं डालना. मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते आप. प्लीज बी वेरी केयरफुल. डोंट चेंज द मीनिंग. चाहे वर्ड रिपीट होता है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके. आप 2-3 वर्ड्स चेंज कर दीजिए, हम सब 7 तब भी आएंगे. लेकिन गलत वर्ड डाल दिया, गलत सिनोनिम डाल दिया, देन इट इज अ ब्लंडर. ठीक है. सो हमने पहला वाला सेंटेंस यहाँ पे रीफ्रेज किया. ठीक है. अब इसके बाद आप डेफिनेटली जब आप लिखोगे, आई विल टेल यू दैट मोर इलैबोरेटली लेटर. उसके बाद आप लिखोगे द 2 मेन रीजंस आर दिस एंड दिस, जो भी हम रीजंस लिखेंगे आने वाले टाइम पे, एंड देन वी विल राइट डाउन दैट द इम्पैक्ट ऑफ इट विल बी दिस एंड दिस, जो भी हमने डिसाइड किया है, राइट? अब मैं क्या करूंगी, जो भी आपने लिखना है, मैं आपको थोड़े से जिसे कहते हैं ना, आई गिव यू सम हेल्पिंग हैंड, राइट? आई गिव यू सम पैराग्राफ्स, आई गिव यू सम सेंटेंसेस. आप वो लिखेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे, उसकी हेल्प से और आप अपनी लैंग्वेज की हेल्प से आप मुझे एक डेटा तैयार करके दोगे, एक ऐसे तैयार करके दोगे. मेक सेंस? ठीक है. ओके, नाउ राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट. वैसे एक बार इफ आई डिस्कस, धर्मवीर, व्हाट इज द रीजन व्हाई फैमिलीज आर नॉट हैविंग मील्स टुगेदर? Because they are busy in doing jobs. 99% बच्चा ये लिखेगा, गलत नहीं है. दे आर वेरी बिजी इन देयर जॉब्स. अब हम यहाँ पे गेम खेलेंगे वर्ड्स के साथ, राइट? सो विल से दैट वर्किंग पैटर्न्स हैव चेंज्ड इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन क्या है? नेशंस, कंट्रीज है ना. द वर्किंग पैटर्न्स हैव चेंज्ड. हम पहले 6 घंटे काम करते थे, 8 घंटे काम करते थे, 7 घंटे काम करते थे, बात खत्म. हमारे ग्रैंडफादर्स ऐसे ही करते थे, है ना. हम तो 14-14 घंटे भी काम करते हैं, सोते भी नहीं है, right? Because the demands have increased. So यहाँ पे जो बात धर्मवीर ने बोली है, उसको हमने थोड़ा पॉलिश तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है. That the work patterns have changed in the recent years. Got it? लिखें आप जरा. First लिखो. One of the primary reasons for the decline in family meals is the shift patterns. Or you can write down one of the fundamental reasons, one of the prominent reasons for the decline in family meals is the drastic shift in the work pattern. Drastic shift, that's again a nice word. So in your essays you need adjectives and adverbs. अब shift in the pattern, work pattern. अब ये word को अपने कहीं vocabulary list में लिख लो. आने वाले essays में ये बहुत बारी यूज होगा, स्पीकिंग में भी यूज होगा, क्योंकि धर्मवीर ने क्या बोला? बिजी लाइफस्टाइल, हेक्टिक स्केड्यूल. तो चेंजिंग पैटर्न,
पॉइंट वही है बट उसका प्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं. ऑल सॉर्टेड? Yes. Perfect. Continue. With more parents working, long hours in different shifts. अब हम इसको explain कर रहे हैं जो आप नहीं करते generally. In different shifts, comma, finding a common time for family meals has become increasingly challenging. This makes it difficult. Underline the word this. The word this is reflecting to the previous sentence. This. So there's a connection, cohesion. This makes it difficult for families to synchronize their schedules and enjoy meal together. Now, listen to me very carefully. This is one paragraph that I have given to you. आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके ब्रेन को बता रही हूँ कि आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है जी? You have to imagine yourself also because even we don't have meals with our families. Am I right, all of you? Yeah. Got it? अब आप कहते हो मैम मेरे से ना एक्सप्लेनेशन नहीं होती है. क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं होती? आप अब ये क्वेश्चन को अपने साथ अपनी लाइफ पे लगाओ, अपनी लाइफस्टाइल पे करो कि most of the people are doing works in shift. Specifically, people living in European countries, people specifically living in Canada, Australia, and even Asian nations. आजकल Asian countries में भी ये same situation होगी. तो countries के नाम आगे जो भी आप डालना चाहते हैं. So we'll say that there is a change in the work pattern. Their schedules have changed. They are working for international companies, wherein they are working night shifts. समझ रहे हो? आप नाइट शिफ्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बारे में बात कर सकते हैं. आफ्टर 8 hours of job they have to wait because they have targets to complete. There are meetings that are being held. अब आप ये नहीं लिखते हो कि मीटिंग्स भी हेल्ड होती आफ्टर ऑफिस आवर्स, जो पहले नहीं होती थी अब होती है. सो बाय द टाइम दे कम होम एंड व्हेन दे आर कमिंग होम ड्यूरिंग द पीक आवर्स देयर इज हेवी ट्रैफिक. So people generally reach home pretty late. So the dinner time, which is traditionally 8 p.m. or 7 p.m. in some countries, that is not being adhered. अब बताओ, difficult है कि easy है इसको इस तरह से समझना? It's easy. But जब आप लिखते हो तब आप सोचते नहीं हो, तब आपके माइंड में ही नहीं आता कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ मील क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि उनका टाइम अलग है, बच्चे अलग ट्यूशन से आ रहे हैं, जो वाइफ है वो अलग जॉब से आ रही है, आप अलग जॉब से आ रहे हो, आपकी डिमांड्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, आपकी ईएमआईज इतनी हैं, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उस चीज के रीजन से आप काम कर रहे हो, आप डिफरेंट टाइम जोन पे काम कर रहे हो, और बाय द टाइम आप घर आते हो इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि जो ट्रैफिक में भी बंदा वेट कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 घंटा ट्रैफिक में भी यार dude, Sandy,